ایک چیز اور یہاں ایڈ کرنا، اس ماں سے بھی یہ کہوں گی تم سے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس لیے میں ہر وہ بات کرتی ہوں جو میں نے اپنی پرسنلی اپنی زندگی میں اپلائی کی ہو۔ میرا بھتیجا بالکل ایسی، میں نے بھی ڈاکٹر صاحبہ کو بتائی تھی، وہ بہت ہائپر تھا، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ باپ کے سامنے بات کر رہا ہے یا ماں کے سامنے بات۔ میں پنڈی گئی بھی تھی تو کسی کام کی وجہ سے وہ روپ میرے سامنے بھی ایک دن ہوا، نظر آ گیا مجھے، میں دیکھتی رہی اور میں صرف گئی اور جا کے میں نے اس کو گلے لگایا۔ یہ میں کرتی ہوں، وہ اتنا رویا، کہتا ہے سادہ، مجھے سب سادہ کہتے ہیں، کوئی پھپھو نہیں کہتا، کوئی خالہ نہیں کہتا، ایموشنل نیڈ پوری ہو ہاں نا، کہتا ہے سادہ کسی نے کبھی گلے ہی نہیں لگایا، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ مما کو صرف یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں اسکول جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں کھانا کیوں نہیں کھا رہا، میں کیوں نہیں کر رہا، کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے۔ اور میں نے صرف اپنے بھائی بھابھی کو غور سے دیکھا، آج وہ ماشاء اللہ تنزانیہ میں جاب کر رہا ہے، اور میری بھابھی مجھے ہمیشہ کہتی ہے تمہارا وہ ایک ایکٹ میری زندگی سنوار گیا۔ میں آپ سے اس ماں سے کہنا چاہوں گی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہوں، بچہ بول رہا بولنے دیں، وہ کتھارسس اس کے نکلنے دیں، اس نے کسی اور کے آگے نہیں بولنا، اچھا وہ آپ کے سامنے بول رہا ہے، صرف ایک دفعہ اسے گلے سے لگا دیں۔ آپ جب گلے سے لگائیں گی آپ کا اپنا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، اور اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹھنڈک ہے نا، یہ اسے کسی سے نہیں ملتی۔ اچھا، ایک ٹائم، ایک سرٹن ایج بعد امائیں بیٹوں کو گلے لگانا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلب بچے کو بہت شاید کبھی اس کو نیڈ ہو ایموشنل، بالکل، اور ہمارے معاشرے میں امائیں ہو جاتی ہیں تھوڑا، اس کو شیم کیا جاتا ہے نا، دوسرے لوگ کی تو شیم کر رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا ہو گیا ابھی گلے لگا رہی ہے۔ بڑا یا چھوٹے کی بات نہیں ہے، وہ اس کی ماں ہے، اس کی ریلیشن شپ تو دیکھیے، اس کی ایموشنل نیڈ ہمیشہ رہے گی کہ میری ماں مجھے گلے لگائے، میرا بالکل وہی باپ مجھے سینگ گلے ہے، جیسے لگائے۔ مرد روتے اچھے نہیں لگتے، مرد کیوں نہیں ایموشنز ہر مرد کسی کو کے بھی ہیں، تو رونا ہے، مرد بھی تو ہرٹ اتنا ہوگا، شیم مرد کو کیا بھی تو ہے کہ تکلیف مرد ہوگی۔ بیچارے کو پتھر بنا دیا، ہاں کہ نہیں رو نہیں سکتا، اور اگر رو رہا ہے تو ہائے آدمی ہو کے رو رہا ہے۔ اچھا، اور ساری خواتین یہی روتی ہیں کہ ان کو تو احساس نہیں ہوتا، ان کو اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا ہے، آپ ان اور کا احساس بچپن سے کہہ کے بیٹا مرد نہیں روتے، لڑکے نہیں روتے، لڑکی ہو نا، لڑکی ظاہر ہے وہ کٹھور ہوں گے، وہ پتھر ہوں گے۔ جب آپ نے انہیں کہا کہ نہیں روتے تو آپ نے ان کو یہ سکھایا، تو جب وہ آپ کو روتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر وہ اس طرح سے بہیو نہیں کرتے۔ اینڈ آلسو یہ کرتے ہوئے، یس پلیز، آپ ریسرچ بھی ہے جو ابھی سعدیہ نے بھی بات کی ہے کہ ہر انسان کو 8 hugs a day چاہیے، اور اگر وہ اس کی ایموشنل نیڈس کے لیے ٹو فیل سیکیور، وہ بہت ضروری ہے، تو وہ پھر چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پیرنٹس کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ، ایون یہ ہر وہ رشتہ، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی بہن بھی آپس میں، آپ یقین مانیں اتنا ضروری ہے۔ یہ میں نے اب جا کے سمجھا، مجھے بھی کوئی عقل شروع سے نہیں آئی، یقین مانیں یہ جو شوز ہم کرتے ہیں یا یہ جو دنیا ہم نے گھومی یا جو ہم ریسرچ کرتے ہیں چیزوں کو، اب جا کے، ابھی میرا پرسوں ڈنر تھا، میرے بھائی کی برتھ ڈے تھی، میرا خیال ہے کہ اب تو میری عادت ہے، اتنی زور کا میں اس سے گلے لگی نا، میں نے کہا بھائی ابھی چھوڑنا نہیں، ابھی چھوڑنا، اب پاپا کی خوشبو آ رہی ہے تمہارے اندر سے، اس کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ وہ فیلنگ ہوتی ہے، آپ یقین مانیں بھائی بہنوں کی، ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہم نے خود پیدا کر دی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے، وہ تو بڑا ہو گیا، اسے برا لگے گا۔ ارے کیا برا لگے گا، جب وہ تمہارے جھوٹ چھپا رہا تھا، تمہارے ٹوٹے ہوئے گلاسوں کو اپنے ذمہ لے رہا تھا، تب بھی تو وہ تمہارا بھائی تھا نا، اور وہ خود سے سوچ لیا کہ اس کو برا لگے گا، آپ نے خود ازیوم کیا، اس سے پوچھا تو نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو رول کر کے ہم چلتے ہیں اگلے ضرور اس کی طرف۔ مریم ہماری یہاں پہ ماں ہے، اور دیکھتے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے۔ جی السلام علیکم مریم۔ جی وعلیکم السلام ندا۔ جی مریم، جی میں ابھی جس مسئلے کی طرف بہت میں ڈپریس ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اندر چوری کی عادت آ گئی ہے۔ کئی عرصے سے ہمارے گھر میں پیسے کا ادھر ادھر ہونا، میری کبھی الماری سے غائب ہو گئے، کبھی میرے پرس میں غائب ہو گئے، میں سمجھی کہ میں نے بھول کے کہیں اور رکھ دیے ہوں گے، لیکن میں نے جب اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو اپنے بابا کی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا، یقین کریں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہ مطلب بغیر پوچھے وہ نکال رہا ہے،
लेकिन मैंने पहले अपने बेटे को बड़े प्यार से समझाया, मैंने कहा बेटा आपने बाबा के पर्स से आपको कुछ चाहिए था, आपने पैसे निकाले? तो नहीं नहीं मामा बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं निकाले, बिल्कुल नहीं, मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं। और अक्सर ये होता था कि वो रात को आके अपनी शर्ट वगैरह अपनी पैंट वगैरह टंगा रहे हैं वहाँ और मुझसे सुबह पूछ रहे हैं मेरे जेब में पैसे थे क्या, तुमने लिए हैं? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं लिए, मैंने तो देखे भी नहीं। अब ये ऐसी आदत उसके अंदर हो गई है कि मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बनती जा रही है। अच्छा, जब मैंने उससे पूछा कि बेटा आपने ऐसा किया है और मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है, तो वो चीखना शुरू हो गया कि नहीं नहीं आप ऐसी कैसे बात कर सकती हैं, आपने अपने बेटे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। एक दफ़ा मैंने उसके बैग में महंगी स्टेशनरी देखी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये तो मैंने नहीं दिलाई ना, आपके बाबा ने दिलाई, ये कहाँ से आई? तो उसने फ़ौरन कहा कि मामा मेरे दोस्त ने ना गिफ्ट दिया था। मैंने कहा बेटा इतना महंगा गिफ्ट कोई कैसे देगा? तो वो फ़ौरन कहा कि मामा आप छोड़ दें, आप अगर नहीं दे सकती हैं, किसी को नहीं देती हैं तो क्या समझेंगे कोई नहीं देगा, उसने मुझे दिया है। अब मैं इतनी परेशान हूँ, और अभी जो रिसेंटली मेरे साथ 2-3 दिन पहले हुआ उसकी वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। मेरे घर में मैंने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी थी, वहाँ मेरी एक कज़न आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पर्स में पैसे गायब हैं और मेरा पर्स खुला हुआ था। अब यकीन करें कि ये बात अभी सिर्फ मुझे पता थी कि उसके अंदर ये चोरी की आदत आती जा रही है। अब तो उसने मतलब मेरे अलावा बाबा के अलावा दूसरों के पर्स में से भी निकालने शुरू कर दिए। आप यकीन करें मैं इतनी परेशान कि अगर ये बात आ गई, क्योंकि मुझे पता था और मैं दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह ये बात ना आ जाए कि मेरे बेटे ने निकाली है, ये उसके पर्स में से मेरे बेटे ने पैसे निकाले। अगर आ गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे? आज वो घर में कर रहा है, स्टेशनरी का मतलब है कि उसने स्कूल में भी किया है, अब अगर वो बाहर कहीं करेगा तो मेरे लिए तो ये बात ऐसी है, मैं रातों को सो नहीं रही, मुझे कहीं चैन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किस तरह उसकी इस आदत को मैं ऐसी करूं कि वो छूट जाए उसकी आदत। ये एक बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, और इसमें पेरेंट्स के लिए भी लाइक जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। आप ये देखिए उनके दोस्त कौन हैं, वो क्या उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके पास किस तरह की चीज़ें, जिसे हम कहते हैं ना पेरेंटल सुपरविजन या मॉनिटरिंग, वो बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता ही नहीं होता कि बच्चे में स्कूल में बच्चे के दोस्त कौन हैं, वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आपके स्कूल के बच्चों के पास वो चीज़ें हैं और आपकी इतनी इस्तात है कि आप वो बच्चों को दिला सकते हैं लेकिन आप उनको नहीं दिलाते हैं, तो फिर इस तरह के केसेस वहाँ पे आते हैं कि एक तो मिसमैच है कि आपकी इस्तात नहीं है, तो वहाँ पे भी होता है, लाइक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन क्योंकि वो नहीं दे रहे होते बच्चों को, तो अब बच्चा जब स्कूल में देखता है, यानी इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि मेरी नीस का कल एनुअल फंक्शन था और उसने कहा कि उसको मेकअप करके जाना है, एंड शी जस्ट 11, तो वो उसके लिए हम मेकअप अलाउड नहीं, हमारे नहीं है कि वो करे घर पे। तो उसने कहा कि नहीं मैंडेटरी है, उनका कोई फंक्शन में था, तो टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूरी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी फ्रेंड्स करके आएंगी, तो उसने कहा हाँ। अब उस पर हमने उसको हल्का सा, क्योंकि अब कौन है जो बेसिकली 5 से 12 साल की एज होती है ना, पेयर ग्रुप के साथ आप बहुत एफिलिएट करते हैं। अब अगर बाकी बच्चे उसके स्कूल की फ्रेंड्स करके आ रही हो और आप नहीं करके आ रहे हो, एंड देयर इज़ नो हार्म इसमें कि अगर उसको आप हल्का सा टच कर दें, तो मैंने कर दिया एंड शी वाज हैप्पी, और वो चली गई स्कूल में। तो यहाँ पे यानी आप ये पूछे तो सही ना कि बच्चा अगर कोई, यानी पहला जब इंसिडेंट हुआ था ना, तो इनको बजाय कि उसको कन्फ्रंट करने के, अगर वो कह रहा है उसने चोरी नहीं की, तो देखिए आपने देख लिया उसने कर ली, उसको अपने आप को डिफेंड करना है, तो हमें कन्फ्रंटेशन पे नहीं आना। लेकिन उस इवेंट के बाद इनके हस्बैंड को और इनको बैठ के बात करनी चाहिए थी उससे, और पूछना चाहिए था कि ऐसी कौन सी नीड है कि जिसके लिए उसे ये करना पड़ा, और उसने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहा। लोगों को आदत भी होती है, आउट ऑफ हैबिट, बहुत बड़े आउट ऑफ हैबिट, वो ये आदत कैसे पड़ती है? वो आदत इसी तरह से पड़ती है। उस आदत के पीछे अंडरलाइन यही है कि जब आपके पेरेंट्स आपको चीज़ें देते नहीं है ना, या तो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर यानी जैसे होता है ना कि अक्सर आपने देखा होगा, मैं अक्सर पेरेंट्स को ये भी कहती हूँ कि बच्चों का स्कूल में जब आप एडमिशन कराते हैं तो मेक श्योर कि आप उसी लेवल पे कराएं, यानी आप बेटर एजुकेशन के चक्कर में आप उन्हें बहुत हाई फाई स्कूल्स में भेज देते हैं, और वहाँ वो आने वाले बच्चों के पास जो है वो हर तरह की गैजेट्स भी होते हैं और बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो आपके बच्चे के पास नहीं होती। तो बच्चा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, वो उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, क्योंकि उसको राइट और रॉन्ग का नहीं पता ना, आपको पता है कि क्या है या नहीं, जब वो आपसे मांगता है आप भी मना कर देते हैं,
तो फिर बच्चे में इस तरह की आदतें आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे तो आजकल आप गूगल पे जाएं, सर्च करें हाउ टू गेट, तो आपको बहुत सारे तरीके वहीं पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो कहते हैं ना, वो अगर आप देखें कि अपनी चादर देख के पैर फैलाएं, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन देने के लिए बाज़ औक़ात उन इंस्टीट्यूशंस में भी भेज देते हैं, फिर आपकी कोई मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन नहीं होती है। अब इनके केस में सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, क्योंकि ये बच्चे के बहुत सारे इंसिडेंट हो गए और इसने किसी के पर्स से भी निकाले। दे नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, दे नीड टू कंसल्ट सम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आज ये इंसिडेंट हुआ है, कल हो सकता है उसकी कोई और नीड हो। वही वाली बात है कि वो घर किसी घर से बाहर भी कर सकता है। तो इनको तो अब बिल्कुल साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। शी शुड सीक अ क्लिनिकल ये अब इनके हाथ से निकल चुका है। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखिए साइकोलॉजिकली पहली बात तो ये कि स्कूल का बच्चा तो टीनेजर है, तो उसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो डेवलप नहीं हुई, जो कि 25 साल की उम्र में जाके कंप्लीट होती है, जो कि मॉरल रीजनिंग आपको देती है कि ये सही है ये गलत है। एक चीज़ ये। सेकेंडली उन्होंने कहा कि नीड्स वाली बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक बात मैं इसमें ये ऐड करूँगी कि उसको या तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, सप्रेस किया जा रहा है, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए किसी जो निदा के पास है मैं ये ले सकती हूँ। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, छीनने का भी हो सकता है, चोरी का भी हो सकता है, राइट। और उसको या तो ये कहीं पे किसी बात पे महसूस करवाया गया है यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। जब हम ये फील करवाते हैं तो उसमें एक पावर डायनामिक की चीज़ आ जाती है। ये बात करते हुए मुझे ख्याल आया 80s के एरा में वॉल स्ट्रीट में एक बहुत ही इनफेमस जो है ना स्टॉक ब्रोकर था, जॉर्डन, उसका सेकंड नेम मुझे याद नहीं है, ठीक है। उसके घर का माहौल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला था, बहुत ज़्यादा उसको सप्रेस रखा गया था। उसके ये कहा जाता था कि कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका फादर भी एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन था, फेलियर था, तो उसने अपने बेटे को भी ये मिरर करवाया कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते। और वो बड़ा होकर उसने जितने अनएथिकल प्रैक्टिसेस में वो शामिल हुआ है, इलीगल, और जितनी मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड उसने किया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे है। और उसने बहुत पैसा कमाया। क्यों? उसके पीछे क्या था? पावर चाहिए थी, जो कि उसके पास नहीं थी।